Assalamu alaikum and welcome back. In chapter 18, this is the explanation of chapter 18. I have shared with you the PDF file or the text of this chapter 18 in PDF format with you in classroom. So now we are going to discuss the main points because the rest of the things are the details and you will read it by yourself. So basically the points that are necessary or important or the key points that needs to be understood clearly. So I'm going to discuss those points here in chapter 18 lecture video. First of all, he says that every play consists of play और plot. Okay, plot construction की बात करेगा कि कैसी होनी चाहिए plot construction. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग plot construction क्या है? ठीक है, I have shared this video of literary elements of tragedy in which plot was elaborated in detail, क्योंकि वो जो literary elements of tragedy हैं that are actually promoted or written or whatever you can say are told by Aristotle. That's why I shared that earlier video of literary elements of tragedy. So now we are going to specifically discuss about this plot construction. What are the constituent part of plot? Okay, so वो क्या है? Every play consists of basically every play और plot. यानी आपको पता है कि plot जो है वो vital part play करता है in the construction of any play or tragedy or drama. You can say whatever you can say. So the first part which he is going to tell you is the basis. Okay, that is called rising action in which complications are introduced. ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं basis. Basis is a Greek word जिसका मतलब होता है tie करना. ठीक है, tying. So basically plot construction is just like the building or tying of a knot. Okay, and then untying that knot. And then the next part he says is the luxus. It is luxus and luxus both. ठीक है, luxus is a Greek word and denouement is a French word. अब इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है? अनटाई करना, अनरेवल करना, खोलना. ठीक है, रिवील करना. So you can have a great idea of plot by comparing it to a knot. Okay, यानी एक knot को build up करना, then untying that knot is actually the construction of a perfect plot for tragedy. So basis is everything leading up to the moment of peripecia. ठीक है, यानी कि हर चीज़ जो पेरिपेटी की तरफ लीड करती है, लेकर जाती है, वो कहलाती है हमारी हाँ, I have to select this line and will underline it. Well, I selected this blue line. What is this? Okay, so this is everything leading up to the moment of peripety. ठीक है, peripecia जिसे कहते हैं डिस्कवरी और रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ प्लॉट, जो भी आप उसको नाम देना चाहें. ठीक है, और उसके बाद है लक्सिस. क्या है? जो फॉलिंग एक्शन है, जो डेनुमा जो है वो क्या है, या अनटाइंग ऑफ दैट सिचुएशन इज एवरीथिंग फ्रॉम द पेरिपेशिया ऑनवर्ड. पेरिपेशिया के बाद जो भी एक्शन है टिल द एंड वो कहलाता है हमारा लक्सिस. ओके, सो let's check it out. I have shared this diagram from the previous lecture. You will check it out. It is actually the basic diagram of plot. Okay, जिसमें rising action है, climax है, then the falling action है. Actually climax के अंदर हम बात करेंगे what are those things. Again here is a picture of Aristotle's tragic plot structure. Okay, first of all the beginning mean जिसे आप exposition का नाम भी देते हैं. अब इस inciting incident beginning exposition से लेकर इस climax तक जो part कहलाता है उसे कहते हैं complication. ठीक है, complication या उसका दूसरा complication का क्या नाम है? basis. ठीक है,
कॉम्प्लिकेशन का दूसरा नाम क्या है? लेट मी रेज इट. कॉम्प्लिकेशन का दूसरा नाम क्या है? डेसिस. I will write it here. The second name for the complication is डेसिस. ठीक है, और इस वर्ड डेसिस का क्या मतलब है जनाब, वो हम देखेंगे. इसका मतलब है टाइंग, बांधना, बुनना. ठीक है, बिल्ड अप करना, जैसे गिरा को बांधा जाता है. तो दिस इज मीन कॉम्प्लिकेशन दैट इज द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले फ्रॉम द एक्सपोजिशन, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द क्लाइमेक्स. ओके, क्लाइमेक्स इज एक्चुअली द नॉट. ठीक है, जहाँ पे पेरिपिटी और हमारी डिस्कवरी, रिकग्निशन या एनाग्नोसिस के जो है वो इंक्लूड होता है. अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा डेसिस, यानी जिसका मतलब है टाइंग. इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन जिसमें एक्सपोज होते हैं इवेंट्स. ठीक है, दैट इज़ द राइजिंग एक्शन. सो द पोइट or the playwright starts to build up the complication or the tension. ये टेंशन को बिल्ड अप करने की कोशिश करता है. ठीक है, और बाद में क्या आता है? दिस इज द रेजोल्यूशन. दिस इज द फॉलिंग एक्शन फ्रॉम क्लाइमेक्स टू द एंड. दिस इज द फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन में आपको क्या मिलता है? रेजोल्यूशन मिलती है. यानी इस फॉलिंग एक्शन को आप डेनुमा कहते हैं. डेनुमा इज द फ्रेंच वर्ड. ठीक है, और इसके लिए एक और वर्ड जो ग्रीक में है वो क्या हमारे पोइट ने यूज़ किया है, हमारे एरिस्टोटल ने, सॉरी, लूसिस. ओके, ये लेक्सिस भी इसे कहते हैं, और इसका मतलब क्या है? अनटाइंग, यानी कि खोलना. गिरा जो बंधी हुई है, अब उसको खोला जा रहा है. सो denouement and Lucis have the same meaning, though Lucis is a Greek word and denouement is a French word. So both have the same meaning of untying. यानी complication या tension जो build up हुई राइजिंग एक्शन में, वो फॉलिंग एक्शन में रिजॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है, अनटाई हो रही है, अनरेबल हो रही है. ठीक है, खुल रही है. So here this point is the most important point. Here we will start the plot reversal. पेरिपेशिया, जैसे पेरिपिटी भी कहते हैं, चेंज ऑफ फॉर्चून. क्लाइमेक्स के अंदर ये पार्ट आपका मौजूद होता है. यानी वो कहता क्या है? डेसिस और कॉम्प्लिकेशन प्लॉट का वो हिस्सा है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एक्सपोजिशन ऑफ द प्ले टिल बिफोर द पेरिपिटी. यानी पेरिपिटी तक जो है वो हिस्सा आपका राइजिंग एक्शन या कॉम्प्लिकेशन या डेसिस कहलाता है. ठीक है, और पेरिपिटी के बाद का जितना एक्शन है दैट इज काउंटेड एज लूसिस या डेनुमा जिसे कहें, या रेजोल्यूशन या फॉलिंग एक्शन, जो भी इसे कह लें. ठीक है, अब पेरिपिटी में क्या है? पेरिपेशिया ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या है? प्लॉट रिवर्सल, चेंज ऑफ फॉर्चून. ठीक है, वो जो फिर उसके बाद है उसके यानी फ़ौरन बाद का आपके क्लाइमेक्स में दूसरा पेरिपिटी के बाद फ़ौरन आती है एनाग्नोसिस, डिस्कवरी. ठीक है, सो और उसके बाद इसको हम डिस्कवरी को क्या कहते हैं? याद है आपको? एनाग्नोसिस. दिस इज कॉल्ड एनाग्नोसिस. ओके, इसको नाम हमने दिया था एनाग्नोसिस का. सो फ्रॉम दैट पेरिपेशिया टू द एंड द होल पार्ट इज कॉल्ड Lucis or the denouement or the resolution or the falling point. So actually we can say that plot construction is like a building up a knot. Okay, एक knot को build up करने को कहते हैं, ठीक है, plot. So let's check out. Plot is like a piece of string that is twisted up into a complex knot. ठीक है, यानी कि
twisted up into the complex into a knot, complex knot. अब complex knot को आप कंपेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं इट्स लाइक बिल्डिंग अप द टेंशन. ठीक है. अब टेंशन को जब आप माइंड में लाएंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि इस टेंशन को रिजॉल्व करना, रिलीज करना किस तरह से आप इसीलिए कर सकते हैं विद द रिलीजिंग ऑफ द इमोशन. कौन से इमोशन? पिटी और फियर का जो रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड कैथारसिस. यानी कि ये ट्रैजिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है ना. So the plot is thus structured around the moment of peripety. ठीक है. peripecia और reversal where the knot begins to unravel. unravel का मतलब है untie होना शुरू हो जाती है, खुलना शुरू हो जाती है, रिलीज होना हो जाती है. every event before the peripecia should serve to complicate the plot. यानी आप जो पेरिपेटी से पहले जितना भी इवेंट है या इंसिडेंट्स हैं, दे मस्ट सर्व टू कॉम्प्लिकेट द प्लॉट, दे मस्ट सर्व टू कॉम्प्लिकेट द नॉट. ठीक है. एंड एवरी इवेंट फ्रॉम द पेरिपेटी ऑनवर्ड शुड सर्व टू अनटाई दीज कॉम्प्लिकेशन. अब उसके बाद जितना फॉलोइंग एक्शन में क्या होना चाहिए कि ऑल दोज कॉम्प्लिकेशन शुड बी रिजॉल्व. ठीक है. ऑल दोज you can say tensions must be resolved, released in the form of catharsis. यही तो एंड है ना हमारी ट्रेजिडी का. ठीक है. ट्रेजिक इफेक्ट किसे कहते हैं? कैथारसिस को, रिलीज और रिलीज ऑफ पेंट ऑफ इमोशन. कौन से पेंट ऑफ इमोशन है? पिटी और फियर के. तो ठीक है, ये है ना हमारा कैथारसिस, ये है रिलीज ऑफ दैट टेंशन. तो नॉट को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द टेंशन और उस नॉट के खुलने को आप कह सकते हैं रिलीज. ठीक है. वो नॉट जब खुल गई है तो उसका मतलब है इट विल गिव रिलीज टू दैट टेंशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द काइंड्स ऑफ ट्रेजिडी. अब उसमें काइंड ऑफ ट्रेजिडी में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी. ठीक है. पहले वो कहता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी इज कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी, यानी वो मेड अप ऑफ पेरिपेशिया एंड एग्नोसिस. कॉम्प्लेक्स प्लॉट की तरह कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी बेसिकली प्ले अपने प्लॉट से ही पहचाना जाता है. तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है दैट इज मेड ऑफ पेरिपेटी एंड एग्नोसिस. ठीक है. डिस्कवरी. तो कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी की भी सेम डेफिनेशन है. तो सेकेंड इज ट्रेजिडी इज सफरिंग. And third type of tragedy is the tragedy of character, and the fourth the tragedy of spectacle. Spectacle आपको पता है that is based on the scene and scenario. यानी spectacle क्या कहते हैं? जिसको आप आँख से देख सकें. ठीक है. और spectacle आपको याद होगा it's the least important element in बिल्डिंग अ गुड ट्रेजिडी, यानी लीस्ट प्रेफर्ड पॉइंट है ये. और यानी अरिस्टोटल क्या कहता है? मेजर फोकस फॉर बिल्डिंग अ ट्रेजिडी, फॉर क्रिएटिंग अ ट्रेजिडी क्या होना चाहिए? प्लॉट होना चाहिए. प्लॉट सॉलिड उसका होना चाहिए ताकि एक्चुअल ट्रेजिक इफेक्ट हो. लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजिडीज भी हैं दैट आर बिल्ड अप ऑन द स्पेक्टिकल. ठीक है. स्पेक्टिकल में सीन, इंसिडेंट, एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. ठीक है. जिसको आप आँख से देख सकते हैं. कुछ कभी ऐसी साइट भी होती है ना जिसको देख के आपके दिल में दुख, दर्द, वो तमाम फीलिंग्स आती हैं. सो द पोएट शुड राइट अबाउट फोकस इंसिडेंट. ठीक है. हर अलाबला उसको शामिल नहीं करना चाहिए. एंड नॉट अबाउट अ होल एपिक स्टोरी. फॉर इंस्टेंस अ ट्रेजिडी कुड नॉट पॉसिबली टेल द एंटायर स्टोरी ऑफ द इलियड इन एनी काइंड ऑफ द सेटिस्फाइंग डिटेल. अब इलियड इज अनदर एपिक स्टोरी. तो कहता क्या है कि एपिक की तरह ट्रेजिडी में हर बात नहीं नरेट करनी आपने. ठीक है. सो इट मस्ट बी फोकस्ड. It must use or write about focus incident, but it can pick out and elaborate upon an individual episode within the Iliad. ठीक है. Iliad की अब वो जो poem है, epic है, उसमें से कुछ specific details को pick up कर सकता है in order to build up that tragedy. Okay. Next point is the chorus. Chorus के बारे में क्या कहता है? Chorus आपको पता है, it's a group of people. ठीक है. अब हर tragedy में तीन तरह के paradox. ठीक है. कैमोस और स्टेसमन. ठीक है. ये तीन आपके कोरल सॉन्ग्स होते हैं. ठीक है. जो सर्व करते हैं और उनको कौन सिंग करता है? कोरस. कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर. लेकिन यानी कि अब यहाँ भी क्या कहता है कि हाउ दे मस्ट बी ट्रीटेड. ठीक है. इट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एन एक्टर. ठीक है. कि इंटेग्रल पार्ट है. इट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एन एक्टर एंड द कोरस सॉन्ग शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी.
Definitely. Too often Aristotle laments the choral songs have little to do with the action at all. ठीक है, though they have little to do with the action, but they comment and introduce all the events that took place outside the play. ठीक है, and यानी हर चीज़ को इंक्लूड करके डिटेल बता के तुम ट्रेजिडी में अगर डालेंगे तो वो तो लंबी हो जाएगी ना. तो कोरल सॉन्ग एक्चुअली कमेंट करते हैं ओवरऑल जो सिचुएशन है, या वो इस बात पे भी करते हैं कि पीछे क्या हो चुका है, या अब नेक्स्ट इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ है. यानी वहाँ पे जो जनरल ट्रुथ है दैट इज़ नरेटेड. ठीक है, ग्रीक ट्रेजिडी में आपको पता है कि फेट का जो रोल है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो बेसिकली उसको प्रोपोगेट करने के लिए, या क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, या उसको प्रमोट करने के लिए इस कंसेप्ट को. ठीक है, तो दे वर यूज टू कमेंट ऑन द सिचुएशन. सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 18 main and important points. So the rest you can check in your chapter. If there is any confusion you can ask me in the comment section. Okay.